Am I audible? Am I audible to all of you? Thank you. Thank you. Ruman, please, we will first finish with our attendance. Will it be okay for you? Ruman? Yes. Okay. Thank you. She's joining. She's joining. Hmm. Yes. Vishakha is there. Vishakha is there.
I can see her name, but why they are not responding? Is there any problem with audio? Vishakha, am I audible to you? Vishakha, Vishakha, am I audible to you? Okay. Sadhana, what about Sadhana? Yes, why? Attendance नाही दिलास ग? ओके ओके. नाही ठीक आहे, मी फक्त यासाठी व्हेरीफाय केलं तुमचं नाव घेऊन दुसरं कुणी एंटर नाही झालं ना त्यासाठी. दॅट्स इट. ओके. थँक्यू. 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 येस. कनेक्ट होके डिस्कनेक्ट नहीं हुआ, उसने लेट एंट्री किया है. आई विल एडमिट हर बट शी विल बी मार्क्ड एब्सेंट. Even same with Rutuja. Yeah. Yeah. So let's start with the last topic from this chapter. Okay. Today we are going to finish with this chapter. Yeah. This is most frequently asked, most frequently repeated 5 mark question, or even sometimes for 2 mark also. Okay. So we are going to discuss foodborne diseases very fast. Now, basically, whenever we are talking about foodborne diseases, we are supposed to pay attention towards two aspects. One thing is what different diseases can occur either because of presence of toxins in the food, okay, or because of presence of certain chemicals in the food. Okay. Second aspect is what different diseases can occur because of presence of infectious agents in the food. ओके. सो दो ही वर्ड है जिसके ऊपर आपको फोकस करना है. हम फूडबॉर्न के बारे में बात कर रहे हैं तो फूडबॉर्न विल बी कॉमन. ओके. तो फूडबॉर्न इंटॉक्सिकेशंस क्या है, मतलब टॉक्सिन रिलेटेड या फिर केमिकल्स रिलेटेड कौन कौन से कंडीशंस है. एंड सेकेंडली फूडबॉर्न इन्फेक्शंस क्या है. ओके. सो टू कीवर्ड्स, डोंट फॉरगेट. फूडबॉर्न intoxications and second is infections. Okay. So first we will pay attention to foodborne intoxications. Okay. So now there are possibilities that the toxins may be present naturally in some foods, or sometimes it may happen that these toxins are produced by certain bacteria, or they may be produced by certain fungi. Okay. Or there is possibility of presence of different chemicals in the food. Okay. So these four different aspects we are going to see. Okay. तो यहाँ पे पहले हमें क्या देखना है. So what are the foodborne intoxications which occur due to presence of toxins. Okay. And these are the toxins which are naturally present in the food. Okay. जो food हम लेते हैं उसमें वो present है. So regarding this, there are two conditions that you are supposed to know. One is latherism and second is endemic ascites. Okay. Secondly, certain diseases which are concerned with the toxin production by bacteria. Okay. तो बैक्टीरिया फूड में है, बैक्टीरिया ने टॉक्सिन्स प्रोड्यूस की है. सो दिस में रिजल्ट इन बॉट्यूलिज्म एंड स्टेफाइलोकोकल food poisoning, or we can say simply staphylococcal poisoning. Okay. Different fungi. So toxins which are produced by some fungi, it mainly includes aflatoxins resulting in aflatoxicosis, ergot, okay, resulting in ergotism, and second important thing is fusarium toxins. Okay. This is under research. Okay. So there is no specific condition. Then fourth important aspect which is concerned is chemical poisoning. Okay. So foodborne chemical poisoning कैसे हो सकता है. Okay. So there is possibility that certain chemicals like heavy metals, they are likely to be present in the food. जैसे कि फिश में जनरली मर्क्यूरी कैन बी प्रेजेंट. शेलफिश के बारे में हम स्पेसिफिकली बात करते हैं तो कैडमियम उसमें हो सकता है. ओके. जितना भी पैकेज में फूड आता है, कैंस में आता है. ओके. जो कैन फूड है उसमें लीड दैट इज प्लम्बम हो सकता है. ओके. अनदर पॉसिबिलिटी जो पेट्रोलियम डेरिवेटिव्स है, सॉल्वेंट्स है, वो आ सकते हैं फूड में. ओके. और यस्टरडे हमने बात की थी, अगर आपको याद है, तो जो कुछ भी रैपर्स यूज़ करते हैं फूड पैकेजिंग के लिए, ओके, तो
ये पैकेजिंग मटेरियल से कुछ केमिकल्स माइग्रेट हो सकते हैं फूड में, वो आ सकते हैं। ओके, एस्बेस्टॉस हो सकता है। ओके, सेकेंड कैटेगरी में हमने फूड एडिटिव्स में देखा था कंटामिनेंट्स। ओके, तो सेम थिंग, पेस्टिसाइड या फिर इंसेक्टिसाइड्स के रेसिड्यू हो सकते हैं। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, that is foodborne intoxication. Second possibility is easy, so this thing is easy to write. Okay, so here we are talking about different infections which occur because of presence of infectious agent in food. तो यहाँ पे possibility क्या है, फूड जो है वो कंटामिनेटेड है, उसमें बैक्टीरिया, वायरसेस या फिर पैरासाइट्स हो सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली we can get bacterial intestinal infections or viral intestinal infections, or even the person may suffer from parasitic infections. ओके, तो बैक्टीरियल में टाइफॉइड फीवर है, पैराटाइफॉइड फीवर है, ओके, साल्मोनेलोसिस है, स्टेफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग है, ओके, या फिर क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रिंजेंस का फूड पॉइजनिंग है। फूड पॉइजनिंग हमने खत्म किया है, आप सबको ये पता होना इसेंशियल है। बॉटिलिज्म हो सकता है, ओके, या फिर बैसिलिस सीरस फूड पॉइजनिंग है। अगर आपको ये एजेंट याद है तो डेफिनेटली यू कैन कंप्लीट योर लिस्ट, अदरवाइज यू कैन जस्ट मेंशन बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग। ओके, अगर नाम स्पेसिफिकली याद नहीं आते हैं तो कम से कम आप इतना मेंशन कर सकते हो, बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग। ओके, ई कोलाई डायरिया है, ओके, नॉन कॉलरा विब्रियो इलनेस हो सकता है, ओके, देन विब्रियो पैराहिमोलाइटिकस अगर फूड में प्रेजेंट है, ओके, तो दैट कैन कॉज इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। शिगेलोसिस है, ब्रुसेलोसिस है। ओके, वायरल में आपको हिपेटाइटिस में यू शुड बी वेरी केयरफुल, डोंट फॉरगेट टू मेंशन इट्स हिपेटाइटिस ए एंड ई। ओके, सो if you mention only hepatitis, that will be your somewhat wrong answer. Okay, because blood borne भी है, food borne भी है, तो कौन से viruses food borne है ये आपको पता होना essential है। ओके, सो वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो सकता है। ओके, वायरस में डायरिया में बहुत सारे कॉजेस हमने देखे हैं। ओके, सेकेंडली पैरासाइट्स के बारे में इफ वी आर टॉकिंग, तो इट इंक्लूड्स टीनियासिस, हाइडेटिडोसिस, trichinosis, ascariasis, amebiasis, and oxyuriasis. Can any one of you tell me what is another name for oxyuriasis, or can any one of you tell me very fast the name of that parasite or even common name of that parasite? कुणीतरी पटकन सांगा. दिस इज युअर सेकंड इयर नॉलेज. ओके, सगळं सेकंड इयर आपण रिपीट करतो हियर. ऑक्झियुरियासिस, वर्मचं पॅरासाइटचं नाव सांगा मला. ओके, सायंटिफिक नाव सांगा, कॉमन नाव सांगा, किंमत. येस, very right. Okay, so here you are supposed to know that, or you may call this as enterobiosis, right? So is it clear with foodborne diseases? Two important keywords I told you: intoxication and infection. Okay, so now let's first see what are the different फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन। ओके, तो फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशंस कौन से है ये हम पढ़ेंगे। ओके, तो इसमें हमें जो पढ़ना है, इट इंक्लूड्स लैथेरिज्म, इट इंक्लूड्स एफ्लाटॉक्सिन्स रिजल्टिंग इन एफ्लाटॉक्सिकोसिस, एर्गोटिज्म हमें पढ़ना है, एपिडेमिक ड्रॉप्सी हम देखेंगे, एंडेमिक असाइटिस हम देखेंगे, और फ्यूजारियम टॉक्सिन्स हम देखेंगे। ओके, तो ऑल दीज थिंग्स आर कंसर्न विद द टॉक्सिन्स। तो फर्स्ट थिंग वी विल टॉक अबाउट दी लैथेरिज्म। ओके, तो लैथेरिज्म अगर हम इंडिया में देखते हैं तो वी कैन फाइंड हाई प्रिवेलेंस ऑफ लैथेरिज्म इन सर्टन स्टेट्स, जैसे कि मध्य प्रदेश है, बिहार है, उड़ीसा है। ओके, जहाँ से एपिडेमिक का रिपोर्टिंग हुआ था। ओके, और कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं महाराष्ट्र से, गुजरात से, कर्नाटका से, इवन फ्रॉम वेस्ट बंगाल। ओके, तो बेसिकली बहुत साल पहले मध्य प्रदेश के 2 डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ऑलमोस्ट 25,000 एट वन प्लेस एंड 32,000 एट अनदर प्लेस। ओके, तो एक रेवा डिस्ट्रिक्ट था, एक सटना डिस्ट्रिक्ट था, जहाँ पे ये केसेस रिपोर्ट हुए थे। ओके, तो क्या है बेसिकली, व्हाट इज लैथेरिज्म?
ओके, सो डोंट फॉरगेट दिस इज द पैरालिटिक डिजीज। अगर आप इमेज के ऊपर फोकस कर सकते हो तो आपको पता चल जाएगा। ओके, दिस इज द पैरालिटिक डिजीज। ओके, तो दिस कंडीशन वी कैन फाइंड इन ह्यूमंस ऑल्सो, वी कैन फाइंड इन एनिमल्स ऑल्सो। तो कब होने वाला है, इसका फूड के साथ क्या रिलेशन है? तो डेफिनेटली आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन रिकलेक्ट, ऑलरेडी वी हैव टॉक्ड अबाउट द पर्ल्स, वी हैव टॉक्ड अबाउट द टॉक्सिन। ओके, सो वंस अगेन I repeat it occur because of excessive consumption of Lathyrus sativus. Okay, so Lathyrus sativus is the pulse and this pulse contains toxin. Toxin का नाम क्या है? बीटा ऑक्सालिल अमाइनो अलानिन। ओके, तो ये जो टॉक्सिन है ये हार्मफुल है। दिस टॉक्सिन is capable of crossing the blood brain barrier and it is capable of affecting nervous system. So that's why result जो हमारे सामने आ रहा है, this results in spastic paralysis. Okay, तो crippling disorder है, paralysis हो सकता है, permanent disability रहती है. Okay, which is mainly concerned just with consumption of the pulse containing the toxin. ओके, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस इसके क्या है? बहुत इजी है। ओके, तो इसमें लेटेंट स्टेज रहता है पहले। ओके, तो यहाँ पे द पर्सन अपीयर्स अपरेंटली हेल्दी दिखेगा हमें। ओके, बट वेन एवर देर इज फिजिकल स्ट्रेस, जब भी कोई स्ट्रेसफुल काम करेगा ये पर्सन, ओके, फिजिकल स्ट्रेस के बारे में हम बात कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटीज के बारे में वी आर टॉकिंग। तो जब भी फिजिकल स्ट्रेस इज देयर, so gait of that person will change. Okay, so generally this gait, it is described by K Park as ungainly gait. Okay, or we can say clumsy gait. Okay, तो जो style of walking है that will get affected. Okay, लेकिन जब हम देखते हैं what you can see, person will appear apparently healthy, लेकिन जब कुछ काम करेगा, जब कुछ exertion होगा, जब कुछ physical work होगा, so that time only what we can see is change in the gait. Okay, तो gait change होने वाला है latent stage में। सेकेंड स्टेज में आगे जाके पेशेंट एंटर करेगा, दिस इज नो स्टिक स्टेज। ओके, तो नो स्टिक स्टेज में क्या होता है, पेशेंट इज एबल टू वॉक, ओके, एंड नो सपोर्ट इज रिक्वायर्ड। ओके, लेकिन जो स्टेप्स पेशेंट लेने वाला है वो बहुत शॉर्ट स्टेप्स है और जर्की है। ओके, सो शॉर्ट स्टेप्स विथ सम जर्की मूवमेंट्स, दैट्स व्हाट यू कैन ऑब्जर्व इन नो स्टिक स्टेज। ओके, आगे जाके क्या होगा, वन स्टिक स्टेज है। ओके, तो पेशेंट वोंट बी एबल टू सपोर्ट बॉडी वेट एंड हैज टू टेक सपोर्ट ऑफ स्टिक, दैट्स व्हाट यू कैन सी इन दिस इमेज। ओके, तो वन स्टिक का सपोर्ट लिया है। वन स्टिक स्टेज में बैलेंसिंग के लिए पेशेंट को सपोर्ट लेना है, पेशेंट विल टेक सपोर्ट ऑफ वन स्टिक। ओके, तो यहाँ पे बेसिक जो टेंडेंसी है इज टू वॉक ऑन दी टोज, तो पेशेंट विल ट्राई टू वॉक ऑन दी टोज। और यहाँ पे जो गेट है दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस्ड गेट। ओके, तो यहाँ पे इमेज में अगर आप देखते हो तो नी का फ्लेक्शन हुआ है, सो बिकॉज ऑफ फ्लेक्स नी दिस रिजल्ट्स इन क्रॉस्ड गेट। ओके, तो यहाँ पे भी गेट चेंज होने वाला है। आगे जाके दिस बेंडिंग विल गो ऑन फर्दर। ओके, so because of excessive bending the patient will require bilateral support to walk। अभी चलने में पेशेंट को दोनों साइड से सपोर्ट लेना है, 2 स्टिक लगेंगे। ओके, सो दिस इज 2 स्टिक स्टेज। ओके, एंड इवन विद द हेल्प ऑफ 2 स्टिक्स पेशेंट कैन वॉक ओनली शॉर्ट डिस्टेंस। ओके, थोड़ा ही डिस्टेंस पेशेंट कवर करने वाला है। उसके बाद आगे जाके और पेशंट वोंट बी एबल टू सपोर्ट बॉडी वेट। ओके, शरीराचं वजन घेताच येणार नाहीये इवन विथ द हेल्प ऑफ सपोर्ट, अँड दिस इज द मोस्ट डेंजरस स्टेज, दिस इज क्राउलर स्टेज। ओके, तो व्हॉट पेशंट विल डू, छोटी मुलं जशी रांगतात, सो सेम थिंग वी कैन सी इन दीज पेशंट्स। ओके, देर इज क्राउलिंग स्टेज। ओके, सो पेशंट विल वॉक ऑन हैंड्स एंड नीज। ओके, सो स्टेजेस आर वेरी इजी टू रिमेंबर। क्लिनिकली आप एग्जामाइन करोगे तो रिफ्लेक्सेस आपको देखना है, व्हाट यू कैन फाइंड एक्सैगरेशन ऑफ रिफ्लेक्सेस। ओके, बैबिन्स के साइन अगर आप देखते हो तो दैट साइन यू विल गेट पॉजिटिव।
ओके, एंड ये जो पैरालिसिस है दिस इज स्पास्टिक पैरालिसिस. नाउ जस्ट आई विल आस्क यू, कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी, जो पोलियोमाइलिटिस में पैरालिसिस होता है वो कौन सा पैरालिसिस रहता है? व्हाट टाइप ऑफ पैरालिसिस यू कैन फाइंड इन पोलियो पेशेंट्स? पोलियो मधला पैरालिसिस. येस, येस, एब्सोल्युटली राइट. सो डिफरेंस है. यस, पोलियो का जो है वो फ्लैसिड पैरालिसिस है, लोअर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस है. ये जो है ये स्पास्टिक पैरालिसिस है. ओके, तो दिस थिंग यू आर सपोज, दिस इज, हाँ, किसमें? Yeah, that order, I'm not interested right now in order. I just want to know कि flaccid किस में रहता है, spastic किस में रहता है. Okay, so that's what my expectation from you. Okay, now इसे हमें कंट्रोल करना है तो हमारे पास क्या इंटरवेंशंस है? ओके, तो सबसे पहले हमें विटामिन सी का प्रोफाइलैक्सिस देना है. ओके, सो दैट इट प्रिवेंट फर्दर डैमेज. ओके, तो फर्दर डैमेज प्रिवेंट करना है तो विटामिन सी हमें देना है. ओके, सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर है, लैथेरस सटाइवस का जो क्रॉप है उसे बैन करना है. कल्टीवेशन ऑफ लैथेरस सटाइवस शुड बी बैंड एंड रादर इट इज बैंड. ओके, तो इंडिया में ये बैन हो चुका है लेकिन फिर भी एडल्ट्रेशन पर्पज के लिए कल्टीवेशन किया जाता है. इसे दूसरे पल्सेस के साथ मिक्स किया जा सकता है. राइट, टॉक्सिन को हमें रिमूव करना है. उसके लिए दो मेथड है हमारे पास. एक तो स्टिपिंग मेथड है. स्टिपिंग मेथड में आपको क्या करना है, बॉइल्ड वाटर लेना है, इसमें ये पल्स डालना है. ओके, 2 घंटे के लिए हमें ये रखना है. ओके, उसके बाद ड्रेन करना है. यस, वापस क्लीन वाटर लेके हमें वॉश करना है. देन वी आर सपोज टू ड्राई दिस पल्स इन सन. ओके, तो सिर्फ बॉइल्ड वाटर में it includes soaking for 2 hours, followed by draining, followed by cleaning with clean water और washing with clean water. ओके, उसके बाद अच्छे से ड्राई करना है, लेकिन इसमें विटामिन और मिनरल्स लॉस हो सकते हैं. ओके, सेकेंड जो मेथड है पार बॉइलिंग हमें करना है. दिस पार बॉइलिंग इज डिफरेंट. ओके, तो यहाँ पे हमें पर्ल्स को लाइम वाटर में सोक करना है ओवरनाइट. ओके, उसके बाद हमें बॉइल करना है. Okay, so this method it destroys the toxin. Okay, and it is very important to educate the people regarding how to remove toxin. Okay, तो लोगों को हमें educate करना है regarding removal of toxin. One more thing what we can do is we can cultivate some new strains of crops. Okay, तो जिसमें ये toxin नहीं रहेगा, ऐसे पल्स का हम cultivation कर सकते हैं. Okay, another important thing which is concerned with food toxicants is aflatoxicosis. Okay, तो aflatoxins क्या है? mycotoxins है. Okay, these are mainly produced by fungi. The name of the fungus. Okay, तो दो fungi है. एक है Aspergillus flavus, दूसरा है Aspergillus parasiticus. Okay, तो most important thing what you are supposed to know regarding this, ये स्टोरेज फंगस है. ओके, और एफ्लाटॉक्सिन्स में जो B1 है, G1 है, दैट आर हार्मफुल टू द लीवर. ओके, सो दीज आर हिपैटोटॉक्सिन्स. या विच फूड्स वी आर सपोज टू पे अटेंशन, कौन से फूड का स्टोरेज हमें ठीक से करना है? द फूड्स विच आर लाइकली टू गेट इन्फेस्टेड, इट इंक्लूड्स जोवार, वीट, ओके, ग्राउंड नट्स, मेज है. ओके, जिसमें मॉइस्चर है, कॉटन सीड्स है, जिसमें मॉइस्चर ज़्यादा रहता है वहाँ पे फंगाई की ग्रोथ होती है. ओके, सो दिस सिंपल थिंग वी आर सपोज टू नो. ओके, तो एफ्लाटॉक्सिन पॉइजनिंग जो हुआ था लास्ट 1975 में. ओके, तो 400 केसेस रिपोर्ट हुए थे राजस्थान और गुजरात से. ओके, तो उसके बाद केसेस नहीं है रिपोर्टेड. इसे कंट्रोल करने के लिए और फोकस शुड बी ऑन मॉइस्चर कंटेंट. ओके, तो लेस दैन 10% मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए. उस मतलब जितना ज़्यादा मॉइस्चर रहेगा उतना ज़्यादा फंगस की ग्रोथ होने वाली है. तो हमें क्या करना है, मॉइस्चर को कम करना है. ओके, तो इट शुड बी केप्ट बिलो 10%. ओके, और जो स्टोरेज है
it should be appropriate storage and it should be followed, rather ड्राय करना है सनलाईट में पुरे सूर्यप्रकाशामध्ये चांगले वाळवून घ्यायच्यात या सगळ्या गोष्टी आणि मग आपल्याला स्टोअर करायच्यात. ओके, सो प्रॉपर स्टोरेज इज व्हेरी इसेंशियल. एर्गोटिज्म अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग. ओके, एफ्लाटॉक्सिन्स के बारे में हमने बोला था, स्टोरेज फंगस है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है ये फील्ड फंगस है. ओके, एफ्लाटॉक्सिन्स जब हम स्टोर करते हैं तब ये ग्रो होने वाले हैं, लेकिन एरगट जो है वो फील्ड में जो क्रॉप है उसके ऊपर ग्रो होने वाले हैं. ओके, तो एरगट में बेसिकली अगेन फील्ड में हमें ये दिखाई देगा. ओके, तो फील्ड फंगस है. यहाँ पे जो मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड फूड ग्रेन्स है वो बाजरा है, ज्वार है, वीट है, राय है. ओके, जहाँ पे हम ये फंगस देख सकते हैं. यहाँ पे जो फंगस ग्रो होता है उसका नाम है क्लैविसेप्स फ्यूजीफॉर्मिस. ओके, क्लैविसेप्स फ्यूजीफॉर्मिस. फील्ड फंगस आपको भूलना नहीं है यहाँ पे. ओके, तो ये कैसे दिखता है, इमेज के ऊपर अगर आप फोकस करते हो तो आपको ब्लैकिश कलर दिखाई देगा. ओके, तो जो सीड्स है इसमें हमें ब्लैकिश मास दिखाई देगा. ओके, ये इरेग्युलर शेप में रहता है एरगट. ओके, अगर हम एरगट इन्फेस्टेड फूड कंज्यूम करते हैं तो इट लीड्स टू एर्गोटिज्म. ओके, तो जो क्रॉप्स है, जो ग्रेन्स है, एरगट से इन्फेस्टेशन हुआ है, हमने वैसे ही कंज्यूम किया है, तो इट कैन रिजल्ट इन एर्गोटिज्म. ओके, सो एर्गोटिज्म में बेसिकली आउटब्रेक भी रिपोर्ट हुए हैं. कहाँ पे पॉसिबिलिटी है, ज़्यादातर इसका ग्रोथ दिखाई देता है बाजरा के ऊपर. तो एट प्लेसेस वेयर बाजरा इज स्टेपल फूड, ओके, वी कैन सी एर्गोटिज्म. एर्गोटिज्म के मैनिफेस्टेशंस जो है एक्यूट में क्या है, क्रॉनिक में क्या है, ये हमें देखना है. एक्यूट में जीआई डिस्टर्बेंसेस आपको दिखाई देंगे, वॉमिटिंग हो सकता है, उसके साथ नोशिया, गिडीनेस हो सकता है. ओके, दिस रिमेन्स फॉर 1 और 2 days. लेकिन ये क्रॉनिक है तो डेफिनेटली ये डेंजरस है. तो इसमें पेशेंट डेवलप्स पेनफुल क्रैम्प्स इन द एक्सट्रीमिटीज. ओके, तो बेसिक जो चेंज होता है इट इज कंसर्न विद द वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन. ओके, तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, बाद में ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा और एंड स्टेज में व्हाट यू कैन सी इज गैंग्रीन. ओके, सो इवन दिस कैन लीड टू डेवलपमेंट ऑफ गैंग्रीन. ओके, प्रिवेंशन और कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना है. ओके, तो जो इन्फेस्टेड ग्रेन है उसे रिमूव करना है. हैंड पिकिंग हम कर सकते हैं, हाथ से निकाल सकते हैं. एअर फ्लोटेशन हम करते हैं, ज्यांनी सुपात धान्य हवेवर हे करताना बघितलं असेल, दॅट इज कॉल्ड एज एअर फ्लोटेशन. एंड वी कैन टेक 20% सॉल्ट वाटर. ओके, जिसमें हमें ये ग्रेन्स डालने हैं. जो फ्लोट होने वाला है उसे डिस्कार्ड करना है. ओके, सो हैंड पिकिंग, एयर फ्लोटेशन and floating the grains in 20% of salt water. Please permit me to end this meeting. The interested people can rejoin.
Am I audible? Thank you. Thank you. ओके, तो एरगिट समझ में आया है. All these are 2 or 5 marks question most frequently asked. Okay, so don't miss anything from this. The next thing is epidemic dropsy. Okay, so epidemic dropsy, it is concerned with the food adulteration, as we talked yesterday, and I told you not to forget the name of argemone seeds or argemone oils. Okay, तो argemone oil है जिसमें harmful toxin है. It can be mixed with mustard oil. Okay, it can be mixed with mustard oil or other edible oil, and whenever we consume such oil, it results in एपिडेमिक ड्रॉपसी. ओके, तो 2 नाम है. सबसे इंपॉर्टेंट नाम है जिसमें टॉक्सिन है वो है आर्जेमोन ऑयल और आर्जेमोन सीड्स है जिससे हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं. ओके, तो जो टॉक्सिन इसमें है उसका नाम है सैंग्विनेरिन. ओके, सो आर्जेमोन ऑयल इट कंटेन्स सैंग्विनेरिन. ओके, सो बेसिकली दिस टॉक्सिन इट इज हार्मफुल. और ये जो एडल्ट्रेशन होता है दिस कैन बी ईदर एक्सीडेंटल. ओके, तो जहाँ पे मस्टर्ड सीड्स ग्रो होते हैं वहीं पे ये अर्जेमोन मैक्सिकाना जो प्लांट है वो हमें दिखाई देता है. तो एक तो एक्सीडेंटल हो सकता है या फिर डेलिबरेटली भी किया जा सकता है. ओके, तो दोनों भी पॉसिबिलिटीज हैं. ओके, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा फोकस क्या है, जो ऑयल हम कंज्यूम करते हैं ओके दैट शुड बी फ्री फ्रॉम अर्जेमोन ऑयल. ओके, तो ये हमें अगर डिटेक्ट करना है तो कैसे हम डिटेक्ट करेंगे. तो वी आर हैविंग 2 टेस्ट विच कैन बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ प्रेजेंस ऑफ अर्जेमोन ऑयल. ओके, तो नाइट्रिक एसिड टेस्ट है जिसमें हमें ऑयल का सैंपल लेना है और जो नाम बताता है नाइट्रिक एसिड उसमें हमें नाइट्रिक एसिड डालना है. ओके, आफ्टर दैट यू आर सपोज टू पे अटेंशन टू द कलर. ओके, तो कलर के ऊपर हमें फोकस करना है. अगर ऑयल का कलर ऑरेंज हो जाता है ओके या फिर ब्राउन हो जाता है या फिर रेड हो जाता है तो दिस इज सजेस्टिव दैट आर्जेमोन ऑयल इज प्रेजेंट. ओके, तो उसमें आर्जेमोन ऑयल है. लेकिन ये टेस्ट पॉजिटिव आने के लिए आर्जेमोन ऑयल का प्रपोर्शन थोड़ा ज़्यादा होना इसेंशियल रहता है. ओके, सो आर्जेमोन ऑयल 0.25% अगर है तो ही ये टेस्ट डिटेक्ट करेगा, नहीं तो नहीं होगा डिटेक्शन. ओके, तो इससे कम इसमें आर्जेमोन ऑयल है और उसे हमें ढूंढना है तो वी कैन गो फॉर सेकेंड टेस्ट दैट इज पेपर क्रोमेटोग्राफी टेस्ट. ओके, पेपर क्रोमेटोग्राफी टेस्ट जो है बहुत सेंसिटिव टेस्ट है. ओके, तो ये टेस्ट से हमें पता चलेगा अगर उसमें पॉइंट नॉट 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 1% आर्जेमोन ऑयल है तो भी पता चलने वाला है. सो पेपर क्रोमेटोग्राफी इज हाईली सेंसिटिव टेस्ट. ओके, तो इससे हमें पता चलेगा. वी आर इंटरेस्टेड इन क्लिनिकल एस्पेक्ट. तो अगर ड्रॉपसी आ रहा है ओके तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज ड्रॉपसी में आपको क्या मिलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है वो यू कैन फाइंड इज देयर इज सडन ऑनसेट ऑफ बायलैटरल पिटिंग एडिमा. ओके, देयर इज सडन ऑनसेट ऑफ बायलैटरल पिटिंग एडिमा है. ओके, तो जो स्वेलिंग है वो आपको दिखाई देगा. डायरिया हो सकता है. ओके, माइट बी एसोसिएटेड विद डायरिया. डिस्निया इज ऑब्वियस टू ऑकर. ओके, तो पेशेंट को डिस्निया रहेगा. एंड cardiac failure and death can occur. Okay, so this may result in death. So this is somewhat dangerous adulteration, that's what we can say. Okay, so epidemic dropsy. Endemic ascites. Endemic ascites again after many years back, we are talking about 1973 to 1976 period. Okay, मध्य प्रदेश. तो मध्य प्रदेश में आउटब्रेक हुआ था एंडेमिक असाइटिस का. ओके, मध्य प्रदेश में ही केसेस हुए थे, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज एंडेमिक. ओके, तो ये क्यों हुआ था, वहाँ पे जो लोग ग्रेन मिलेट लेते हैं वो मिलेट का नाम है पैनिकम मिलियर. ओके, जो इमेज में आप देख रहे हो वहाँ का वो मिलेट है, कॉमन नेम उसका गोंदली है. ओके, लेकिन कभी कभी क्या होता है, सो अलोंग विथ दिस पैनिकम मिलियर, if crotalaria
क्रोटालरिया का कॉमन नेम है वहां पे झुनझुनिया। ओके, तो गोंदली सीड के साथ अगर झुनझुनिया सीड्स को मिक्स किया है, ओके, तो इट रिजल्ट्स इन एंडेमिक असाइटिस। ओके, तो यहाँ पे झुनझुनिया सीड्स है जिसमें टॉक्सिन प्रेजेंट है। ओके, सो ये जो टॉक्सिन है दिस इज अल्कोलॉइड है, पायरोजोलिडिन अल्कोलॉइड्स। ओके, और ये जो पायरोजोलिडिन अल्कोलॉइड्स है दीज आर हार्मफुल टू लीवर, ये हिपैटोटॉक्सिन्स है, और जो कुछ भी लीवर को हार्मफुल होता है तो उसका मैनिफेस्टेशन आपको असाइटिस में मिल जाएगा। ओके, so clinical manifestation what we can see is ascites. So one of the cause that of ascites that can be concerned with the nutrition is you can suspect this in Madhya Pradesh. Okay, so where gondhali seeds, okay, they are mixed with junjunia seeds. Okay, so panicum millier है botanical name, ओके, क्रोटालारिया है जिसमें पायरोजोलिडिन अल्कोलॉइड्स है। ओके, तो प्रिवेंट करना बहुत आसान है क्योंकि दोनों सीड्स का साइज अलग अलग है। ओके, ये जो झुनझुनिया सीड्स है वो स्मॉलर साइज के है, तो सिर्फ सिविंग अगर हम करते हैं फक्त ते चाळून घेतलं तरी आपण सेपरेट करू शकतो। ओके, सो सिंपल थिंग इज देअर. So what we said, simple sieving is the preventive measure for endemic ascites which occurs due to presence of Junjunia seeds in diet. Okay, so Fusarium toxins ये field fungi है. Okay, field fungi में अभी तक कोई particular disease condition नहीं है इससे related. This is under research. Another most important aspect we are going to complete today is community nutrition programs. Okay, another most frequently asked questions. तो यहाँ पे जो टेबल आपके सामने है तो कौन से प्रोग्राम्स है उनके नाम है एंड द नेम्स ऑफ द मिनिस्ट्रीज, कौन सी मिनिस्ट्री उससे रिलेटेड कंसर्न है. ओके, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे हैव स्टार्टेड डिफरेंट सप्लीमेंटरी फीडिंग प्रोग्राम्स. क्यों स्टार्ट किए हैं, हमें क्या ओवरकम करना है, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स को ओवरकम करना है. सो फॉर दैट रीजन एंड वॉट एवर डिफरेंट प्रोग्राम्स यू कैन सी इन ब्लैक कलर, ओके, दे आर इम्प्लीमेंटेड बाय डिफरेंट मिनिस्ट्रीज. ओके, तो अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं जो इसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं. तो इफ वी टॉक अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इट इज कंसर्न विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम. This is concerned with prophylaxis against nutritional anemia and it is concerned with IDDCP. I hope all of you know full form of this abbreviation. Okay. Secondly, Ministry of Social Welfare. यहाँ पे स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम है एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम दैट इज ICDS. ओके, मस्ट नो एब्रीविएशन. ICDS एब्रीविएशन का फुल फॉर्म सबको आना चाहिए. ओके, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इट इज कंसर्न विथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिड डे मील प्रोग्राम. ओके, एंड मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD जो है इट इज कंसर्न विथ मिड डे मील स्कीम. सो vitamin A prophylaxis program, already many times we have discussed this program. Okay, so this program was launched by Ministry of Health and Family Welfare in the year 1970. Okay, so what we do in this program, basically for control of blindness क्या suggest किया है, single dose of vitamin A it should be administered to preschool children. Okay, तो हमें प्री स्कूल चिल्ड्रन को देना है 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट विच इज इक्वालेंट टू 110 मिलीग्राम ऑफ रेटिनॉल पाल्मेटेट. ओके, रिपीटेशन जो बोला है आफ्टर एवरी 6 months. ओके, सो जो प्रोग्राम विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस से रिलेटेड दूसरे चैप्टर में है दैट ऑल्सो यू आर सपोज टू नो. दिस इज नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस. या पे अटेंशन टू दीज फॉर्म इन विच नाउअडेज विटामिन ए इज अवेलेबल. तो ओरली हम देते हैं, पहले जो आता था वो बॉटल में सॉल्यूशन आता था, लेकिन नाउ दिस इज मेड वेरी कन्वीनियंट. तो ये जो फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है ब्लू कलर और रेड कलर, इट लुक्स लाइक कैप्सूल. ओके, कैप्सूल के जैसे जो दिखता है. तो
ये दोनों भी हमारे डिपार्टमेंट में है. दिस कैन बी पार्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन फॉर योर स्पॉटिंग. ये आपका स्पॉट हो सकता है. ओके, तो इसमें जो ब्लू कलर है इसमें 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट का डोज है, और जो रेड कलर है इसमें 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट का डोज है. तो आप ये बच्चे का एज बता सकते हो मुझे किसके ऊपर होना चाहिए? इफ यू पे अटेंशन टू द इमेज, कुठल्या कलरचं दिलं जात आहे त्याला? कलर दिसतोय हातातल्या ह्याचा, रेड है तो ये ये तो ये इन्फंट नहीं है. ओके, 1 साल से बड़ा बच्चा है. ओके, या prophylaxis against nutritional anemia, even this thing we have discussed in detail. Okay, so basically national program for prevention of nutritional anemia was launched by government of India. कब ये launch हुआ था? During 4th 5-year plan. Okay, ये प्रोग्राम में हम क्या करते हैं? दिस इज कंसर्न विथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ IFA. Now I hope all of you know this abbreviation, iron folic acid. Okay, iron folic acid हमें देना है. Okay, so our focus is on pregnant women and young children from 1 to 12 years of age. Okay, तो उन्हें हमें देना है. ये प्रोग्राम का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, बेसिकली दिस इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर्स. ओके, तो अर्बन एरियाज में मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ सेंटर्स है, वहाँ से ये आयरन फॉलिक एसिड दिया जाएगा. रूरल एरियाज की हम बात करते हैं तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है, प्राइमरी हेल्थ सब सेंटर्स है. ओके, वहाँ से दिया जाएगा. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नाउ डेज दिस इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू ICDS. ओके, तो ICDS के जो प्रोजेक्ट है वहाँ से इम्प्लीमेंट किया जाता है. और एक इसमें है जिसके बारे में ऑलरेडी हमने बात की थी, सॉल्ट फोर्टिफाइड विथ आयरन. ओके, तो अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज कंसर्न विद दिस प्रोग्राम. So next program, even this program we talked in detail. Okay, we are talking about control of iodine deficiency disorders. Okay, तो सबसे पहला गवर्नमेंट ने जो प्रोग्राम लॉन्च किया था वो 1962 में लॉन्च किया था. द नेम ऑफ दिस प्रोग्राम इज नेशनल गॉइटर कंट्रोल प्रोग्राम. पहले उसका नाम था NGCP. ओके, तो CP इज कॉमन थिंग, कंट्रोल प्रोग्राम है. N जहाँ पे आता है वो नेशनल है एट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, एंड यहाँ पे जो G है वो गॉइटर के लिए है. ओके, तो 1962 में जो प्रोग्राम लॉन्च किया था, सो दैट प्रोग्राम वाज इम्प्लीमेंटेड ओनली इन गॉइटर बेल्ट. ओके, तो वो प्रोग्राम सिर्फ गॉइटर बेल्ट के लिए था. आई होप यू कैन रिकॉल दैट मैप. ओके, वेयर आई हैड शोन यू गॉइटर बेल्ट, तो वहाँ पे ही इम्प्लीमेंट किया था. लेकिन 1986 में ये प्रोग्राम का नाम चेंज किया. Okay, now we are calling this program as iodine deficiency disorder control program, or you can say national iodine deficiency disorder control program. Okay, तो ये प्रोग्राम हमने पूरा पढ़ा है. Okay, just once again I will tell you the 4 important components of this program. Iodized salt या फिर iodized oil है. Okay, iodized oil जो है वो इंजेक्शन के फॉर्म में हम देते हैं, वो एक्सपेंसिव है, हमने बात की थी. हमें आयोडीन का मॉनिटरिंग करना है. ओके, मैन पावर ट्रेनिंग करना है और मास कम्युनिकेशन करना है. ओके, सिंस वी हैड फिनिश्ड ऑलरेडी दिस प्रोग्राम, आई एम गोइंग वेरी फास्ट. या द अनदर प्रोग्राम इज अ स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम. ओके, तो स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो स्टार्ट किया गवर्नमेंट ने वो 1970 में स्टार्ट किया. क्यों स्टार्ट किया? ये प्रोग्राम का एम क्या है? सो एम ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ टारगेट ग्रुप्स. ओके, तो जो टारगेट ग्रुप है उनके ही ऊपर हमें फोकस करना है, उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस इम्प्रूव करना है. ओके, तो यहाँ पे टारगेट ग्रुप कौन है या फिर व्हाट यू कैन से बेनिफिशियरीज कौन है. ओके, ये प्रोग्राम के थ्रू किससे बेनिफिट मिलने वाला है. ओके, तो बेनिफिशियरीज आर चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 6 years. ओके, तो 6 साल के कम जो बच्चे हैं उनके ऊपर हमें फोकस करना है. प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वीमेन है उनके ऊपर हमें फोकस करना है.
तो ये प्रोग्राम में क्या करते हैं, नाम क्या है, स्पेशल न्यूट्रिशन, तो इसमें हम क्या देंगे, फूड सप्लीमेंटेशन। ओके, तो उन्हें हमें सप्लीमेंटरी फूड देना है, जो फूड वो घर में लेते हैं उसके साथ साथ एडिशनली हमें उन्हें ये फूड देना है। ओके, तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट चाइल्ड, तो हर एक चाइल्ड को एवरी डे पर डे 300 किलो कैलोरीज हमें देने हैं। ओके, एंड 10 to 12 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन्स हमें देने हैं। 10 इमेज के नीचे गया है, आई थिंक इट वोंट बी विजिबल टू यू। ओके, तो कितने प्रोटीन हमें हर एक बच्चे को देना है डेली, 10 से 12 ग्राम प्रोटीन देना है और 300 किलो कैलोरीज देना है। ओके, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वीमेन अगर है तो थ्रू दिस प्रोग्राम शी विल गेट 500 किलो कैलोरीज एंड 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन्स एवरी डे। ओके, सो जब ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, दिस प्रोग्राम वाज स्टार्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सेंट्रल प्रोग्राम था। ओके, लेकिन 5th 5-year प्लान में दिस बिकम पार्ट ऑफ मिनिमम नीड प्रोग्राम। ओके, और अभी जो है ये प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन इट इज डन थ्रू आईसीडीएस। तो फाइनली अभी ये किस में मर्ज हुआ है, आईसीडीएस में मर्ज हुआ है। अनदर इम्पोर्टेंट प्रोग्राम इज बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम। ओके, 1970 में ही इसे लॉन्च किया गया था। ओके, इन द सेम ईयर दीज प्रोग्राम्स वेर लॉन्च्ड। लेकिन इसका जो इम्प्लीमेंटेशन किया वो किसके थ्रू किया, इसका नाम अगर आप देखते हो तो दिस इज बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम। तो जो फूड सप्लिमेंटेशन दिया दॅट वॉज गिवन थ्रू बालवाडीज। ओके, बालवाडीला जी छोटी छोटी मुलं जायची त्या काळी, तेव्हा त्यांना फूड सप्लिमेंटेशन दिलं जायचं थ्रू दिस प्रोग्राम। ओके, तो इसमें जो अगेन बेनिफिशियरीज है वो छोटे बच्चे हैं, 3 to 6 years एज ग्रुप कवर्ड। ओके, उन्हें 300 किलो कैलोरीज एंड 10 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन्स देना था। ओके, वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशंस भी ये प्रोग्राम में काम करते हैं। सो वी सेड स्पेशल न्यूट्रिशन, वी सेड बालवाड़ी न्यूट्रिशन। The most important program, basically as far as your exam is concerned, you may get question as community nutrition program, or separately you may get questions for 2 marks. ICDS can be asked for 2 marks or can be asked separately for 5 marks. Okay, तो ICDS जो है आपको, you are supposed to refer 2 chapters for this program. तो एक तो न्यूट्रिशन और हेल्थ को रिफर करना है और दूसरा प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स को भी रिफर करना है। ओके, आई विल ट्राई टू कवर ऑल द पॉइंट्स। ओके, आईसीडीएस, डोंट फॉरगेट इट्स फुल फॉर्म, दिस इज इंटिग्रेटेड चाइल्ड डेव्हलपमेंट सर्व्हिसेस। ओके, ज्यांनी कुणी एसटीवरचे बोर्ड वाचायची सवय असेल, आपल्या आजूबाजूचे बोर्ड वाचायची सवय असेल, एकात्मिक बाल विकास योजना असं जर कुणी ऐकलेलं असेल, वाचलेलं असेल, तर वी आर टॉकिंग अबाउट दिस स्कीम. ओके, इंटिग्रेटेड चाइल्ड डेव्हलपमेंट सर्व्हिसेस. ओके, दिस प्रोग्राम it was started by the Department of Social Welfare in the year 1975. ओके, तो ये प्रोग्राम के कंपोनेंट क्या है, ये प्रोग्राम के थ्रू हम क्या करते हैं। ओके, तो इसमें से हम न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज सप्लीमेंटरी न्यूट्रिशन। ओके, तो हमें न्यूट्रिशन देना है। ओके, इम्यूनाइजेशन भी किया जाता है थ्रू दिस प्रोग्राम। इम्यूनाइजेशन है, विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस किया जाता है। ओके, जिनको विटामिन ए देना है दैट इज गिवन थ्रू आईसीडीएस सर्विसेज। ओके, हेल्थ चेकअप किया जाता है। ओके, और नॉन फॉर्मल एजुकेशन दिया जाता है। ओके, तो कंपोनेंट में वंस अगेन आई रिपीट, इट इंक्लूड्स इम्यूनाइजेशन, इट इंक्लूड्स विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस। ओके, इट इंक्लूड्स हेल्थ चेकअप, it includes nutrition supplementation plus nutrition education, it includes non-formal education, एंड जैसे विटामिन ए देते हैं वैसे ही आयरन फॉलिक एसिड के टैबलेट भी दिए जाते हैं। ओके, तो आईएफए का डिस्ट्रीब्यूशन भी आईसीडीएस के थ्रू होता है। ओके, तो इसके जो बेनिफिशियरीज है, दीज आर चिल्ड्रन, दीज आर एडोलेसेंट्स, दीज आर प्रेग्नेंट वीमेन। ओके, तो बहुत सारे लोग हैं जो बेनिफिशियरीज हैं ये प्रोग्राम के, तो उनको क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं दैट वी विल सी। तो ये सब कंपोनेंट्स या फिर हेल्थ सर्विसेज आपको समझ में आया है। ओके, हेल्थ चेकअप करना है
हमें न्यूट्रिशन सप्लीमेंटेशन देना है, हमें इम्यूनाइजेशन के ऊपर ध्यान देना है, उन्हें एजुकेट करना है हेल्थ के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, ओके। नॉन फॉर्मल एजुकेशन देना है बच्चों को। उसके साथ साथ किसी को रेफरल अगर लगता है तो वी आर सपोज टू प्रोवाइड अ रेफरल सर्विसेज। जैसे कि यहाँ पे डिटेक्ट किया गया ग्रोथ फेलियर है, किसी बच्चे का वेट ठीक से नहीं बढ़ रहा है, उसे आगे CHC में भेजना है, तो दैट referral services are also provided, okay। so different services are given under this program। तो ये प्रोग्राम से बहुत सारे सर्विसेज दिए जाते हैं, ओके। तो बच्चों की अगर हम बात करते हैं 3 years to 6 years तक के बच्चे, यस, तो इसमें हमें उनका हेल्थ चेकअप करना है, उन्हें हमें सप्लीमेंटरी न्यूट्रिशन देना है, इम्यूनाइजेशन है, रेफरल सर्विस है, ओके, और नॉन फॉर्मल एजुकेशन देना है, ओके। 3 साल से कम जो बच्चे हैं, नॉन फॉर्मल एजुकेशन छोड़ के वट एवर थिंग्स आई टोल्ड यू ऑल आर एप्लीकेबल फॉर देम, ओके। जो एडोलेसेंट एज ग्रुप है उन्हें सप्लीमेंटरी न्यूट्रिशन देना है, उन्हें न्यूट्रिशन और हेल्थ एजुकेशन देना है, ओके। सेकेंड फोकस है हमारा रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के वुमेन, ओके, वो भी बेनिफिशियरीज है ये प्रोग्राम के। 15 to 45 ईयर्स के जो फीमेल्स है, ओके, उन्हें हमें न्यूट्रिशन एजुकेशन और हेल्थ एजुकेशन देना है, उनके ऊपर सिर्फ एजुकेशन का फोकस है। लेकिन इनमें से जो प्रेग्नेंट है तो उनका हेल्थ चेकअप करना है, उन्हें एजुकेशन भी देना है, उन्हें न्यूट्रिशन सप्लीमेंटेशन भी देना है, ओके। तो एक्स्ट्रा कैलोरीज, एक्स्ट्रा प्रोटीन्स वो भी देने हैं, उनका इम्यूनाइजेशन करना है, मतलब TT, प्रेगनेंसी में जो हम टिटेनस इम्यूनाइजेशन करते हैं उसके ऊपर हमें फोकस करना है, ओके। वो लैक्टेटिंग विमेन है तो उसका भी रेगुलरली हेल्थ चेकअप होगा थ्रू ICDS, ओके। उसे भी न्यूट्रिशन सप्लीमेंटेशन दिया जाएगा और एजुकेशन दिया जाएगा, ओके। सो एजुकेशन इज द की वर्ड, दैट्स व्हाट यू कैन से हियर, राइट। सो दिस इज what different services are there, what different beneficiaries are there, और कहाँ से ये सर्विसेज मिल सकते हैं, ओके। तो प्राइमरी हेल्थ सब सेंटर्स से मिल सकते हैं रूरल एरियाज में, या फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहाँ से मिलेंगे, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है वहाँ से भी मिलेंगे। लेकिन जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग है दैट यू मस्ट नॉट फॉरगेट टू मेंशन इज आंगनवाड़ी सेंटर्स, ओके। तो यहाँ पे आंगनवाड़ी सेंटर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। आंगनवाड़ी सेंटर्स आगे आप देख रहे हो मिनी आंगनवाड़ी सेंटर है, ओके। मिनी आंगनवाड़ी सेंटर्स जहाँ पे बेसिकली ट्राइबल एरियाज है वहाँ पे छोटे सेंटर्स रहते हैं, ओके। आंगनवाड़ी सेंटर जब हम बोलते हैं, ओके, तो उसका जो पॉपुलेशन नॉर्म है वो डिफर होता है, ओके। तो आंगनवाड़ी सेंटर्स एंड मिनी आंगनवाड़ी सेंटर्स are the most important infrastructures, that's what we can say, through which all these beneficiaries they will get benefit related to various health services that are given through ICDS, okay. Another important program is midday meal program. Midday meal program, this is also known as school lunch program, okay। या प्रोग्राम से दूसरा नाम है स्कूल लंच प्रोग्राम। दिस प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर 1961, ओके। तो 1961 में लॉन्च किया था ये प्रोग्राम। सो इसमें हम क्या करते हैं, एज यू कैन सी इन द इमेज, हमें बच्चों को सप्लीमेंटरी फूड देना है। ऑब्जेक्ट क्या था ये प्रोग्राम का, टू अट्रैक्ट मोर चिल्ड्रन फॉर स्कूल एडमिशन। तो स्कूल का एडमिशन बढ़ाना है, लोगों को, बच्चों को लिटरेट करना है, तो लिटरेसी बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, ओके। तो जो गाइडलाइन दी है, 1 साल में कितने दिनों तक बच्चों को फूड मिलना चाहिए, सो मिनिमम फीडिंग डेज इन 1 ईयर इट शुड बी 250 डेज, ओके। तो उसका जो मॉडल मेन्यू है वो डिफर होता है, साउथ इंडियन बच्चों के लिए वो अलग है, नॉर्थ इंडियन बच्चों के लिए वो अलग है, और जो रेकमेंड किया है मॉडल मेन्यू वो NIN ने रेकमेंड किया है। आई होप यू कैन रिकॉल द फुल फॉर्म ऑफ NIN, ओके। तो NIN का रिकमेंडेशन है, और जो फूड हम देंगे बच्चों को तो डेली हमें 250 दिन देना है, हर एक दिन हर एक बच्चे के लिए, ओके। 75 ग्राम सीरियल्स या मिलेट्स उसमें होने चाहिए, 30 ग्राम्स उसमें पल्सेस होने चाहिए,
ओके 30 ग्राम्स लीफी वेजिटेबल्स होने चाहिए, 30 ग्राम्स नॉन लीफी वेजिटेबल्स होने चाहिए और 8 ग्राम्स ऑयल या फैट होना चाहिए। ओके तो रिकमेंडेशन क्या है, हर एक दिन हर एक बच्चे के लिए सीरियल्स और मिलेट्स है, लीफी वेजिटेबल्स है, नॉन लीफी वेजिटेबल्स है, पल्सेस है। 75 ग्राम सीरियल्स मिलेट्स है, 30 के हिसाब से हमें पल्सेस, लीफी वेजिटेबल्स, नॉन लीफी वेजिटेबल्स देने हैं और हमें ऑयल को ऐड करना है। ओके लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब भी ये मील दिया जाता है वन शुड मेक इट वेरी क्लियर, वी आर सेइंग इट इज सप्लीमेंट, दिस इज सप्लीमेंटरी, दिस इज नॉट सब्सटीट्यूट। ओके तो होम डाइट के लिए ये सब्सटीट्यूट नहीं है, उसके साथ साथ हमें देना है, राईट। सो थोडक्यात सांगायचं तर मुलांचा त्यांचा टिफिन त्यांच्यासोबत हवा आणि त्याच्याबरोबर हे घेतलं जावं, राईट। सो सप्लीमेंटरी है, सब्सटीट्यूट नहीं है। जो 1/3 एनर्जी रिक्वायरमेंट है बच्चों की वो फुलफिल होनी चाहिए। जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है उसमें से 50% प्रोटीन रिक्वायरमेंट शुड बी फुलफिल्ड थ्रू दिस मील। ओके और ये कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, मील का कॉस्ट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऑल अदर थिंग्स आर देयर। बेसिकली बच्चों को ये मोनोटोनस नहीं होना चाहिए, तो रेसिपीज चेंज करनी है। ओके सो दी मेन्यू जो है उसे चेंज करना है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। लेकिन क्या गोल है, क्या गोल अचीव करने थे गवर्नमेंट को थ्रू दिस प्रोग्राम? जो गोल था स्कूल का अटेंडेंस इम्प्रूव करना है, एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करना है। ओके बच्चों को एजुकेट करना है न्यूट्रिशन के बारे में, तो बहुत सारी चीज़ें थी विच आर कंसर्न विद दिस प्रोग्राम एंड दिस इज ऑनगोइंग प्रोग्राम। ओके दिस इज ऑनगोइंग प्रोग्राम एंड नाउअडेज दिस इज पार्ट ऑफ मिनिमम नीड प्रोग्राम। ओके तो मिनिमम नीड प्रोग्राम का ये पार्ट है। आई विल जस्ट टेक 2 more minutes. Basically last scheme it is midday meal scheme. Okay so 2 different things are there. Okay we initially we said midday meal program, now we are saying this is midday meal scheme. Okay इसका जो दूसरा नाम है this is national program of nutritional support to primary education। तो यहाँ पे हमारा फोकस है सिर्फ प्राइमरी स्कूल के बच्चों के ऊपर। ओके तो ये प्रोग्राम लॉन्च किया था 15 अगस्त 1995 में। ये प्रोग्राम रिवाइज किया गया 2004 में। ओके क्यों लॉन्च किया ये प्रोग्राम? सो टू इंक्रीज द अटेंडेंस, बच्चों का अटेंडेंस बढ़ाना है। ओके टू इंक्रीज एनरोलमेंट, ओके तो उनका एनरोलमेंट बढ़ाना है। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू इंक्रीज रिटेंशन। तो इंडिया में होता कैसा है, बच्चे एडमिशन लेते हैं स्कूल में लेकिन बीच में ही जो कुछ मायग्रेटिंग लोग रहते हैं, यहाँ से वहाँ जाते हैं, भटक्या जमाती ज्या असतात इकडून तिकडून जाणाऱ्या, शाळेत ॲडमिशन घेतात, नंतर मुलांना शाळेतून काढून टाकलं जातं। ओके तो इसके ऊपर फोकस था टू इंक्रीज दी रिटेंशन। ओके तो बच्चों को स्कूल में रिटेन करना है, हमारा फोकस है इसमें, हमारा फोकस है इसमें मेनली ऑन प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन। ओके प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं 1st to 5th स्टैंडर्ड के ऊपर, उनके ऊपर हमारा फोकस है। ओके तो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे, जो भी बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं या गवर्नमेंट एडेड स्कूल में जाते हैं, ओके उन्हें ये फैसिलिटी मिलती है। ओके सो स्पॉन्सरशिप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का स्पॉन्सरशिप है ये प्रोग्राम के लिए। ओके तो जो कुछ भी फूड ग्रेन्स है दीज आर सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एट फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके तो कितना ग्रेन सप्लाई करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, कितना आता है, हर एक दिन के लिए हर एक बच्चे के लिए 100 ग्राम दिया जाता है, प्लस जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है उसके ऊपर सब्सिडी होती है। ओके सो दीज आर दी एस्पेक्ट विच आर कंसर्न विद द स्पॉन्सरशिप। ओके तो इसमें हमें क्या करना है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इसमें हम क्या करते हैं, हमें मिड डे मील देना है, कुक्ड मील देना है। ओके खाना पका के बच्चों को देना है, तो 300 किलो कैलोरीज देने हैं और 8 to 12 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन्स देने हैं। ओके ये प्रोग्राम में कुछ सजेशंस दिए हैं
फूड का प्रिपरेशन कैसा करना है इसके लिए. ओके, तो मेनी थिंग्स ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अंडर द टाइटल लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स. तो लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी है. सो क्विकली आई विल रिपीट इट. ओके, तो क्या सजेशन दिया है ये डाइट, ये मिड डे मील प्रिपेयर करने के लिए? यूज ऑफ होल व्हीट को हमें यूज करना है, पार बॉइल्ड राइस को यूज करना है, या फिर अनपॉलिश्ड राइस को यूज करना है. ओके, प्रिपेयर क्या करना है? प्रिफरेबली इट शुड बी सिंगल डिश. ओके, इट शुड बी सिंगल डिश एंड दैट कैन कंटेन ब्रोकन व्हीट राइस, उसमें ही स्प्राउटेड पल्सेस को डालना है या फिर सोयाबीन को डालना है. जो कुछ भी सीजनल वेजिटेबल्स अवेलेबल है वो भी उसमें डालने हैं. ओके, जैसे कि ऐसे सब मिला के हम क्या बना सकते हैं? ब्रोकन व्हीट पुलाव बना सकते हैं. ओके, सिंपली दाल वेजिटेबल भात हो सकता है, लीफी खिचड़ी हो सकती है. सो मेनी ऑप्शंस आर गिवन. ओके, लेकिन हमें फोकस करना है सीरियल्स और पल्स रेशो के ऊपर. तो ये जो रेशो है दैट शुड रेंज फ्रॉम 3:1 to 5:1. ओके, स्प्राउटेड पल्सेस होने ही चाहिए 1 डिश मील अगर हम प्रिपेयर करते हैं तो. ओके, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, वेजिटेबल्स को वॉश करने के लिए गाइडलाइन दी है, वॉशिंग लीफी वेजिटेबल्स फॉलोड बाय कटिंग एंड नॉट इन रिवर्स वे. ओके, राइस कुक करते हैं हम, एक्स्ट्रा पानी बच जाता है तो वो दाल में मिक्स करना है, वो डिस्कार्ड नहीं करना है. ओके, ओवर कुकिंग नहीं करना है. ओके, जब हम कुक करते हैं, ओके, तो लीड या फिर कवर रखना है पैन के ऊपर, राइट. एंड अनदर रिकमेंडेशन, जो लीफी टॉप्स होते हैं कॅरोट और रेडिश के, तो उसे यूज करना आहे. जो पाला आहे, मुळ्याचा पाला, गाजराचा पाला जो टाकून दिला जातो तो यूज झाला पाहिजे. मीठ जे वापरायचं आहे फॉर प्रिपरेशन ऑफ फूड, इट शुड बी आयोडाइज्ड सॉल्ट. ओके, आयोडाइज्ड सॉल्ट इज रेकमेंडेड. फर्मेंटेड फूड्स शुड बी इंक्लूडेड लाइक इडली, डोसा. ओके, मिड डे मील्स में इसका इंक्लूजन होना चाहिए. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, दाल और राइस जो है उसे हमें सोक करना है. ओके, टू सेव कुकिंग टाइम एंड फ्यूअल. ओके, तो फ्यूअल को सेव करना है इसलिए हमें सोकिंग करना है. Okay, so this ends with the chapter. Now the only part which is left from this chapter is assessment of nutritional status, and it will be either your seminar or it will be either your group discussion. Okay, thank you.